Okay, everyone. Hello. Am I audible? Yes, sir. Okay, so I think we can start. हम बस एक quick revision करेंगे. We do a quick revision. Does everyone? Ehtisham, your voice is breaking. One second. Is it better now? Yep. Okay. So we just do a quick revision. Does everyone remember parts of speech, nouns, pronouns, verbs? Ehtisham, it is breaking again. I just switch mic. It should not break now. Yeah, it's much better. I mean, there is some kind of slight disturbance, but at least the voice is not breaking. Does everyone remember the main parts of speech? So the main parts of speech is basically it consists of nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and determiners. So I'll just quickly go over them. Nouns were person, place, animal, or thing, and there are two types: common nouns and proper nouns. Common nouns वो होते हैं generic नाम के लिए, और proper nouns is for a single person or a single entity. Then we have pronouns, which is a replacement for a noun, which is I, you, he, she, they, them, we. Then we have verbs, which is an action. So I am going to play mein, I am going is a verb. Then we have adjectives, which is a word that describes a noun. The red ball fell on the hard ground mein, the red is describing the ball, or hard is describing the ground. So ये हमारे adjectives. Then we have adverbs, a word that describes a verb. तो verb मतलब action. So he ran away quickly में ran away is the verb. So quickly is describing how the person ran away. So that's why it's an adverb, because it's describing how the verb, how the action was committed. Or फिर we have prepositions. Prepositions shows the relation between the noun or pronoun, or shows the position which is in the word, preposition. तो एग्जाम्पल में I was with my brother. With my brother में I'm saying कि मैं अपने ब्रदर के साथ था. तो it's kind of telling the position or the relationship between I and my brother. I was with my brother. फिर the bird was near its nest में near is a position बताया है, तो preposition. Then conjunctions is the type of words that join words and phrases together. The example में me and my family. If I just write me, my family went to the market, तो उतना सेंस नहीं बनेगा. लेकिन अगर मैं and डाल दूँ तो obviously better है, क्योंकि me my family को connect कर रहा है. and फिर है I couldn't do my homework. तो I was late, so I couldn't do my homework. आप बोलोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि I was late, I couldn't do my homework. आपको अगर ये दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है तो बीच में so डालना पड़ेगा. तो I was late, so I couldn't do my homework. तो so and ऐसे और ऐसे टाइप के वर्ड्स को कंजंक्शंस कहते हैं. एंड देन वी हैव डिटरमिनर्स. डिटरमिनर्स में बहुत सारे वर्ड आते हैं. आर्टिकल्स, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव्स. आई वोंट गो ओवर देम अगेन, आप बस ऐसे ही देख लो. एंड माई और हिज, हर, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स. न्यूमरल्स में 1 2 3 4. ऑर्डिनल्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. क्वान्टिफायर्स में अ फ्यू, अनदर. ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे डिटरमिनर्स. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इंटरजेक्शंस. And interjections में we have any word which is used to express a feeling. तो अगर मैं बोल रहा हूँ that football player is really talented, जो यहाँ पर एग्जाम्पल में है, तो इसके साथ मैं wow डाल दूंगा, बिकॉज मेरी फीलिंग मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि wow that football player is really talented. तो wow, alas, oh no, ऐसे टाइप के वर्ड्स या फ्रेजेस को इंटरजेक्शंस कहते हैं. तो दिस वॉज आवर रिविजन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. किसी को कोई भी डाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच में? बिकॉज नाउ विल बी मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड कॉन्सेप्ट. किसी को कोई डाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच में? एनीवन? No, sir.
ठीक है, ठीक है, तो वील मूव ऑन टू सेशन 2. ओके, एवरीवनस देयर. ठीक है, तो सेशन 2 इज अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. तो कैन डज एनीबडी नो व्हाट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस? No problem if you don't. So parts of sentence is a way of dividing sentences और understanding कि एक sentence में कौन से पार्ट होते हैं, क्या होता है एक sentence में. So there are two types of parts of sentences. दो. One is required parts of a sentence and another one is optional parts of sentence. Required parts of a sentence का मतलब हुआ कि एक हर sentence में ये वाले parts होंगे ही, हमेशा होंगे, कोई भी सेंटेंस में आपको ये पार्ट मिलेंगे. और ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस पे. अभी आपको मैं एग्जांपल्स दूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा. तो फर्स्ट से शुरू करते हैं. ये है हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब उसको होना ही है, सब्जेक्ट होगा ही. तो जैसा कि हमने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा, नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, कोई बता सकता है? नाउन क्या होता है? एनीवन? आप गलत हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो नाउन इज बेसिकली अ नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग. जो गेम भी होता है, नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो ये हमारा नाउन हो गया बेसिकली, जिसमें कॉमन नाउन भी आता है, प्रॉपर नाउन भी आता है, हमने अभी पहले देखा था. और प्रोनाउन क्या होता है? कोई एग्जांपल दे सकता है? जो नाउन को रिप्लेस कर देता है. एग्जैक्टली. और कोई एग्जांपल आप दे सकते हो प्रोनाउन का? कोई भी एग्जांपल, कोई भी एक वर्ड. ही इज अ गुड बॉय. हाँ, तो ही इसमें हो गया प्रोनाउन. परफेक्ट. तो हमारा नाउन और प्रोनाउन सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होता है हमारा सेंटेंस का, दैट इज बेसिकली द नाउन या प्रोनाउन. तो ही लाइक्स फुटबॉल में जो हमारा ही है, वो हमारा नाउन और प्रोनाउन के अलावा हम उसको सब्जेक्ट बुलाते हैं, वो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है. माई फ्रेंड एंड आई वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट में माई फ्रेंड एंड आई हमारा सब्जेक्ट है. ठीक है, सबको समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है? तो बेसिकली कोई भी सेंटेंस आप ले लो, आपको सब्जेक्ट हमेशा मिलेगा. सब्जेक्ट हर सेंटेंस में होता है. ठीक है, अब कोई मेरे को बता सकता है, टुडे आई विल गो टू द मार्केट में मेरा सब्जेक्ट क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है गलत होने में, आप बोल दे सकते. आई. बिल्कुल, आई हमारा प्रोनाउन है, तो वो हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि वो प्रोनाउन. ठीक है, मूविंग ऑन. ये हमारा दूसरा रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ सेंटेंस है, प्रेडिकेट. प्रेडिकेट इज बेसिकली वर्ब. अब किसी को याद है वर्ब क्या होता है? वर्ब कोई बता सकता है क्या होता है? तो वर्ब वाज बेसिकली एन एक्शन. आप कुछ कर रहे हो, एन एक्शन. वर्ब एक्शन होता है. तो कोई भी सेंटेंस में प्रेडिकेट मतलब कोई एक्शन जो आप कर रहे हो. तो ही लाइक्स फुटबॉल में वो फुटबॉल को क्या करता है? लाइक. तो लाइक हमारा एक्शन है, लाइक हमारा वर्ब है. तो प्रेडिकेट वाला पार्ट सेंटेंस का ये लाइक होगा. माई फ्रेंड एंड आई वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट में वेंट या वेंट आउट हमारा वर्ब होगा क्योंकि वो कोई एक्शन है, तो वो हमारा प्रेडिकेट हो गया. आई प्ले फुटबॉल में हमारा प्रेडिकेट क्या होगा? प्ले फुटबॉल. ओके, क्लोज, क्योंकि सिर्फ प्ले. ठीक है, वो फुटबॉल क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूं. और प्ले क्यों होगा हमारा प्रेडिकेट? वो वर्ब है. एग्जैक्टली, वो वर्ब है या एक्शन है. परफेक्ट. ठीक है, सबको समझ आ गया? एक बार फिर से बताऊं या वी कैन मूव ऑन? ठीक है, रिज्यूम की, सबको समझ आ गया. अब हम लोग ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आ रहे हैं. ये है हमारा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज नाउन फ्रेजेस एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब. जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब है जिसके ऊपर वर्ब एक्ट करता है.
अब आपको समझ नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ बहुत बेसिक. ही लाइक्स फुटबॉल में ही था हमारा सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन. लाइक्स था हमारा वर्ब, मतलब जो एक्शन है, और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा फुटबॉल. ही लाइक्स क्या, ही लाइक्स, अगर मैं सिर्फ ही लाइक्स बोलूँ तो काफ़ी इनकम्प्लीट है, लेकिन ही लाइक्स क्या, फुटबॉल. तो एक्शन जो था लाइक्स, वो किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, फुटबॉल पे. ही लाइक्स फुटबॉल. यहाँ पर माई फ्रेंड एंड आई वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट. माई फ्रेंड एंड आई वेंट, वेंट क्या, वेंट आउट. सबको समझ आया. ऑब्जेक्ट का मतलब जो यूजुअली वर्ब के बाद आता है, वर्ब किस पे एक्ट कर रहा है. अगर मैं बोलूँ आई लाइक क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट में मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है. एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट क्रिकेट है. क्यों है क्रिकेट, क्योंकि जो लाइक है, जो मेरा वर्ब है, जो मेरा प्रेडिकेट है, वो एक्ट कर रहा है क्रिकेट पे. तो क्रिकेट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. परफेक्ट. सबको समझ आ गया. किसी को कोई भी डाउट अभी तक, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट में किसी को कोई डाउट? नो सर. फिर नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह होता है. तो ही लाइक्स फुटबॉल में कोई कॉम्प्लीमेंट है नहीं, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट भी है, हमारा प्रेडिकेट है, हमारा ऑब्जेक्ट है, अब कुछ बचा नहीं, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है. लेकिन माई फ्रेंड एंड आई वेंट आउट में हमारा माई फ्रेंड एंड आई सब्जेक्ट था, उसके बाद हमारा वेंट हो गया प्रेडिकेट. हाँ, हमारा वेंट हो गया प्रेडिकेट, आउट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब वेंट क्या, वेंट आउट. और ये जो टू प्ले क्रिकेट है, अगर मैं टू प्ले क्रिकेट हटा दूं यहाँ से, अगर टू प्ले क्रिकेट नहीं हो इस सेंटेंस में, तो क्या बन जाएगा, माई फ्रेंड एंड आई वेंट आउट. अगर मैं सिर्फ बोलूँ माई फ्रेंड एंड आई वेंट आउट, तो क्या ये सही सेंटेंस है अभी भी? कोई बता सकता है? अगर मैं बोलूँ सिर्फ माई फ्रेंड एंड आई वेंट आउट, तो क्या ये सही सेंटेंस है या ये गलत है? अगर मैं सिर्फ बोलूँ माई फ्रेंड एंड आई वेंट आउट, तो क्या इसको मैं गलत बोल सकता हूँ इंग्लिश के टर्म्स में? ठीक है, तो द आंसर इज नहीं. माई फ्रेंड एंड आई वेंट आउट कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसमें कुछ मिसिंग है नहीं. माई फ्रेंड एंड आई वेंट आउट, हम दोनों बाहर गए, बस कंप्लीट स्टेटमेंट है. लेकिन ये जो टू प्ले क्रिकेट है, ये एक एक्स्ट्रा की तरह है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेंटेंस में बताने के लिए है. तो माई फ्रेंड एंड आई वेंट आउट टू प्ले क्रिकेट, मतलब आपने ये भी बता दिया कि आप क्यों बाहर जा रहे हो. अगर ये होता सिर्फ माई फ्रेंड एंड आई वेंट आउट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन ये जो टू प्ले क्रिकेट है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह है. तो कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की तरह होता है. सबको समझ आया कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यस सर. ओके. तो अब अगर मैं बोलूं कि ही लाइक्स फुटबॉल, ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स, इसमें कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है? नहीं है सर. नहीं, इसमें कॉम्प्लीमेंट है. अगर मैं बोलूँ ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, तो कंप्लीट स्टेटमेंट है. लेकिन जो ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स है, जो विद हिज फ्रेंड्स है, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया. वो जो विद हिज फ्रेंड्स है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह है. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट इज हमेशा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जगह. अगर आपको कॉम्प्लीमेंट में कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि आप सेंटेंस में स्टार्टिंग से देखो, सब्जेक्ट कहाँ पर है, देखो एक बार. सब्जेक्ट ये है, नाउन या प्रोनाउन, ओके. देन आप देखो प्रेडिकेट कहाँ पर है, ये वर्ब है या हमारा एक्शन है, वो देखो. उसके बाद देखो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, किस पे वर्ब एक्ट कर रहा है, वो देखो. अब आपने ये सब देख लिया, उसके बाद जो बचता है, आपको खुद पता चल जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है. तो अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया, ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स में ही लाइक्स प्लेइंग, ये ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, लाइक्स प्लेइंग हो गया हमारा प्रेडिकेट, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा फुटबॉल. अब जो विद हिज फ्रेंड्स बच गया, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह. सबको समझ आ गया यहाँ तक? कोई डाउट? मैं रिपीट कर सकता हूँ एक बार फिर से कॉन्सेप्ट, ताकि आपको समझ आ जाए. सबको यहाँ तक समझ आ गया? मैं एक बार रिपीट करूँ कॉम्प्लीमेंट सबको, मैं एक बार कॉम्प्लीमेंट फिर से बताऊँ अगर किसी को कोई डाउट है तो? रिपीट कर दीजिए. ठीक है.
कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह, तो मैं ये एनोटेट करके बताता हूँ। तो अगर ये होता कौन सा यहाँ ही टेक्स्ट he likes playing football with his friends है, तो इसमें हमारा ही क्या है? सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट है हमारा ही, मतलब जो हमारा नाउन है जो स्टार्टिंग में आ रहा है ही। अब हमारा लाइक्स प्लेइंग क्या है? Likes playing verb. एग्जैक्टली वर्ब या प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो हम प्रेडिकेट बोलेंगे, लेकिन हाँ वर्ब है, दो वर्ब है। तो और हमारा फुटबॉल क्या है? Object. परफेक्ट, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइक्स प्लेइंग उस पर एक्ट कर रहा है। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब इसमें जो विद हिज फ्रेंड्स है ये बच गया है ना? Compliment. एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर ये विद हिज फुटबॉल में, सॉरी विद हिज फ्रेंड्स में हटा दूं, तो ये भी तो कंप्लीट स्टेटमेंट ही है, ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, एकदम सही स्टेटमेंट है। लेकिन ओ, ये क्या आ गया? ओ माय गॉड, ये जो ही लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल के बाद जो हमारा क्या बोलते हैं विद हिज फ्रेंड्स है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह है, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट बुलाएंगे। सबको समझ में आया? सबको कॉम्प्लीमेंट समझ में आया? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह बेसिकली, ऐसा ही आप समझ सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, मूविंग ऑन। अब ये हमारे एग्जांपल्स हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। अब आपको सब्जेक्ट, अभी हम कॉम्प्लीमेंट अभी हटा रहे हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आई विल प्ले आफ्टर स्टडीइंग, आप एक बार खुद फिर से अपने दिमाग में पढ़ो, आई विल प्ले आफ्टर स्टडीइंग में हमारा सब्जेक्ट क्या है? I subject. किसी को कोई और आंसर? सबको आई लगता है? Yes sir. ओके, ये हमारा आई है सब्जेक्ट, परफेक्ट। प्रेडिकेट क्या है? नहीं, predicate play. Playing. Play. प्लेइंग तो है नहीं, विल प्ले आफ्टर स्टडीइंग है। इसमें हमारा प्रेडिकेट क्या है? ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, आप एक बार खुद सोचो। कोई टेक योर टाइम, सोच के बताओ। ठीक है, कोई नहीं समझ आ रहा, तो इसमें हमारा एक्शन है प्ले, राइट? लेकिन सिर्फ प्ले अकेला नहीं है, इसके साथ विल भी है। विल हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह है। तो आई विल प्ले, विल प्ले जो है, विल और प्ले ये हमारे प्रेडिकेट है। तो ये जो विल प्ले है ये हमारा प्रेडिकेट हो गया या एक्शन हो गया, आई विल प्ले। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? आफ्टर स्टडिंग। परफेक्ट, ये हमारा ओके। तो अब यहाँ पर ये ट्रिक क्वेश्चन था। तो आई विल प्ले, अगर मैं आई विल प्ले के बाद आफ्टर स्टडीइंग हटा दूं, सिर्फ हो आई विल प्ले, है ना? अगर मैं सिर्फ रखूं आई विल प्ले, तो भी ये परफेक्टली फाइन स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये जो आफ्टर स्टडीइंग है ये एक्स्ट्रा की तरह है। अगर मैं बोलता आई विल प्ले फुटबॉल या ऐसा कुछ, आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले वीडियो गेम्स, ऐसे करके कुछ बोलता, तो जो फुटबॉल, वीडियो गेम्स या क्रिकेट होता, वो होता हमारा ऑब्जेक्ट। ये जो आफ्टर स्टडीइंग है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह है। तो अगर आपको याद है तो जो हमारा, एक सेकंड, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में आता है या ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में? Optional part of sentence. और ऑप्शनल पार्ट ऑफ सेंटेंस का क्या मतलब है? मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है वो स्टेटमेंट में हो। तो ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये आपको इसलिए हमेशा दिमाग में रखना है। ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो होंगे ही होंगे, पक्का हमेशा होंगे। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस है, तो नहीं भी हो सकता है, कंप्लीटली फाइन। और जो आफ्टर स्टडीइंग है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो हाँ। नेक्स्ट, ही एट डिनर आफ्टर प्लेइंग, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो हमेशा इजी होता है।
he परफेक्ट. अब हमारा प्रेडिकेट क्या है? at dinner. ओके, तो अब आपको सोचना है सिर्फ 8 होगा या 8 डिनर होगा. आप बताओ. 8. बिल्कुल सिर्फ 8 होगा. क्यों होगा? क्योंकि 8 हमारा एक्शन है, डिनर हमारा एक्शन नहीं है. डिनर तो कोई चीज़ है ना. 8 हमारा है प्रेडिकेट या एक्शन. अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? 8 किस पे एक्ट कर रहा है? ही 8 क्या? तो बता सकते हैं? सॉरी रिपीट एक बार. डिनर. परफेक्ट, डिनर. डिनर. एग्जैक्टली सही, डिनर. क्योंकि ही 8 क्या, ही 8 जो है वो किस पे एक्ट कर रहा है? डिनर पे. तो डिनर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. और ये आफ्टर प्लेइंग क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट. एग्जैक्टली आफ्टर प्लेइंग कॉम्प्लीमेंट हुआ. क्योंकि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह है. अगर ही 8 डिनर अकेले होता तो भी सेंस बनाता. आफ्टर प्लेइंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आफ्टर प्लेइंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरह हमने डाला है. ठीक है. शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट. और सब्जेक्ट क्या है? She परफेक्ट. और प्रेडिकेट क्या है? इज is प्रिपेयरिंग. परफेक्ट, इज प्रिपेयरिंग. और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर द test. टेस्ट. एक बार फिर से सोचो. ये ट्रिक क्वेश्चन है. ठीक है सर, कोई नहीं. ये हमारा फॉर द टेस्ट ही है. क्योंकि अब नॉर्मली आप सोचोगे कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हमारा ये वाले एग्जाम्पल में आफ्टर स्टडिंग हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं, फॉर द टेस्ट है. क्योंकि शी इज़ प्रिपेयरिंग एक्ट कर रहा है फॉर द टेस्ट. ठीक. अब हमारा क्विज है. तो आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया. अगर किसी को कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया तो आप एक बार बता दो मेरे को, मैं एक बार फिर से गो थ्रू कर लूँगा ताकि आप क्विज बेटर दे पाओ. किसी को कोई भी चीज़ में डाउट है, मैं रिपीट कर सकता हूँ अगर आप चाहते हो तो. सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट. किसी को कोई भी चीज़ में डाउट, किसी क्वेश्चन में डाउट, किसी को ये समझ में नहीं आया या ऐसा कुछ भी, कोई भी डाउट? नो सर. No sir. ठीक है. तो आई थिंक हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. जस्ट एक मिनट. ठीक है, मैंने चैट में एक लिंक दी है, वो आपको ज्वाइन करनी है. या आप joinmyquiz.com पे जाके ये कोड एंटर कर सकते हो, 875998. आई वुड से कि आप वो जो लिंक देख रहे हो चैट में वही ज्वाइन कर लो सीधा, उससे हो जाएगा. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सात लोग हैं. आ जाइए. अभी तक सिर्फ 4 आए हैं, सब लोग आ जाइए.
ठीक है, कोई और ज्वाइन कर रहा है क्या? मैं फिर स्टार्ट कर सकता हूँ। किसी को प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में? आपको हेल्प चाहिए तो आप बता दीजिए। ठीक है, आई थिंक फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आप सब अपने पेस पे क्विज कर सकते हो। आपका जब क्विज हो जाए तो आप मेरे को बता देना। यहाँ ये रिपोर्ट चल रहा है। ठीक है, सब लोग अपनी स्क्रीन पे जाके क्विज दे दीजिए। इन 2-3 मिनट्स में हम क्विज एंड करते हैं, बाद में आपको फिर से करना होगा।
ठीक है, आई थिंक अब हम एंड कर सकते हैं। ये आपके स्कोर हैं। ओके, तो फिर आई होप सबको समझ में आ गया। सारे क्विज में कोई आपको डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो। क्विज में या सेशन में कोई भी डाउट है आप अभी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। तो आई होप सबको समझ में आ गया है। अब हम लोग आपको एक क्विज मिल जाएगा और नेक्स्ट वीक फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से शुरू कर देंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट? यस सर। आपको ठीक है। और आपको गूगल क्लासरूम सबको यूज़ करना आ गया है? मैंने असाइनमेंट आपने देखा था? यस सर। ठीक है, गूगल क्लासरूम सबको आ गया है समझ में। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। ये रिकॉर्डिंग मैं अपलोड करके आपको भेज दूंगा। तो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो एक बार वापस जाके देख सकते हो, वरना आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे असाइनमेंट सबमिट करने से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो आई थिंक अब हम एंड कर सकते हैं आज के लिए क्लास। आई होप सबको समझ में आया। ठीक है, बाय एवरीवन। बाय सर।